Ma'am, I have already completed scientific and administrative management. From the next slide. Yes. Leading management thinkers. Okay. I have sent you some pictures. Okay. These are the great thinkers, management thinkers. Okay. Peter Drucker, Henry Mitzberg, Warren Bennis. These are the one of the, you can say, the greatest thinkers in the management. Okay. So now this Peter Drucker, known for the management, yes, this Peter Drucker, known for the management objectives, okay, MBO, which emphasis on the effectiveness and result. Okay, then comes to the next is Henry Mitzberg. He is famous for his book, The Managerial Rules, and he has written one book, The 10 Managerial Rules, in which he emphasizes the importance of interpersonal, informational, and decisional responsibilities. Okay, I have already mentioned this one. Okay, what is the importance of managers? Okay, what are the different roles that assigned to the managers and how they will going to perform their responsibilities? Okay, what is interpersonal? Interpersonal means the communication which take place between the employees, from lower level employees to the upper level management. This is called the interpersonal communication. अगर कभी communication chapter शायद तुम लोग का है, I don't know. MBA में I have not got the full syllabus of MBA papers and all. अगर अगर और communication एक chapter है, business communication. I'm not talking about the communication. I'm talking about the business communication. जहां पर interpersonal, intrapersonal communications बोल के communication part है. Interpersonal communication is a very important personal communications where the communication take place from the higher management level to the lower management level. और ये managements जितना अच्छा अपने एम्प्लॉइज के साथ जितना अच्छा रैपो बिल्डअप करके रहते हैं, उतना ही ऑर्गेनाइजेशंस के लिए एक एक्सलेंट होता है. ओके, दिस इज द कॉल्ड द इंटरपर्सनल रिलेशनशिप. देखिएगा, in many organizations or in many factories of farm, you find that the supervisors, though they are watching the employees, looking after the employees after their works and all, but at the end of the day, many good managers are there who come down and directly talk with the employees. They try to listen the problems, and to far extended they sort out the problems also. Okay, why this happen? This is because the manager also knows, if I make a good rapport with this employees, they will going to give me a they will going to work more for the companies. They can generate more revenues for the companies. Okay, and so this relationship is very very important. That is why Mark Henry, sorry, not Mark Henry, Henry Mintzberg Bird has given the 10 important rules to through interpersonal communications, that how they you need to talk with the employees of any organizations. Okay, many managers are there who provided lot of facilities to their employees. Suppose, say for example, Tata Steel Plant or Tisco. Okay, so they this Tisco plant, they are very much care for their employees. Okay, they are very much caretaking for their employees. Lot of provisions or facilities they are providing to the their employees. They have created the management or the chairman or the group of the managements. They have created a hospital for their employees for the better treatment, free treatments, and not only that, only the employees can get the treatment. Your family members of that particular employee working in the Tata Tisco, they also be benefited from this. Means they will going to get the benefited. And apart from that, there is another provision is there.
that if you take a retirement, if you take the volunteer retirement, there will be a chances for your next generations to work in the Tata Steel plant. This is also a provisions they are made, and apart from that, many other facilities are there. Okay. And now this steel plant is not only this Tata steel plant is not only in India, it is residing. This plant is residing abroad also. Okay, so there, as I have heard and learned from my friends and all, that there are a lot of compensations are there, lot of facilities are there, and they are providing the general insurance directly to the employees, and the insurance means the premium amount paid by the management of that company is only Tata Steel company is only the company which is in abroad. Okay, so these are the facilities they are providing. General insurance, life, apart from that, mediclams, lot many facilities are there. Okay, they are giving the 45 days of a break, loop break. Okay, so means after continuations of your work, if you want to take a holiday here in Indian customs and traditions, they are going to you can take a CL, casual leave, medical leave, more than 1 or 2 or 6 days, not more than that. But in the foreigns and all, in the Americas and all, where the steel plants are there, the company, the management providing 45 days a loop break. Okay, loop break. They will going to provide you the 45 days loop break to the given to the employees. Okay. Apart from that, for the means the women who are working in the Tata Steel plant in abroad, for them there are many more facilities as compared to the men. Okay, so now, why this management doing all these favors to the employees? Because they also know that these employee are the asset for their company, and this employees through this employees the company can generate revenue, more and more revenue from this employees. So they very much the company is very much care they taking care of this employees. Okay. So, and the last is Warren Bennis. He is also a great managements. Okay, he has also written many books, and one of this is Leadership Organizational Changes. He has a renowned and famous book on leaderships and organizational changes, which emphasizing on the vision, mission, values, ethics, communications, and to effective leaders. Okay, through this means if you read the Warren Bennis books, you can understand what the leadership should be, how the leadership should be, and where the leadership should focus on. Okay, and what are the organizational changes that you need to bring if you want to make any changes in your company or in your organization. And apart from that, they are very much care about the vision of the companies. They have a mission goal oriented for the company, and how you can communicate effectively to the leaders and to the employees. Okay, so these are the top management thinkers in modern generations: Warren Buffett, Warren Bennis, Peter Drucker, and Henry Minsberg. These are, you can say, the top level management thinkers they are. Okay, so uh, if you want to make your means if you want to means how can I say something like that, if you want to make your achieve your goal na, you need to follow these books. If you want to make an achievements in through an MBA, okay, then you need to read these books. Okay, these books are very, very valuable books. In modern ethics and modern days, these three important writers has completely changed the scenario of management. इन्होंने मैनेजमेंट का जो एक गोल सेटअप था, एक जो मतलब एक सेटअप था, उन्हीं को पूरा चेंज कर दिया. इतना मतलब क्लियर, लूसिड, फ्री लैंग्वेजेस में इन्होंने ये क्या है लिखा है. बुक अगर परचेज आप नहीं कर पा रहे हो, तो आप सिंपल गूगल में जाके इनका नाम और चेंज उनका नाम टाइप करो, आपको बहुत सारा रेफरेंसेस बुक्स आपको मिल जाएगा. कोई भी एक पीडीएफ डाउनलोड करके आप इनको रीड कर सकते हो. वेरी वेरी हेल्पफुल. और यहां तक नहीं, यहां तक भी है कि इन्होंने जो एग्जाम्पल सेट किया है और दिखाया है, वो एग्जाम्पल्स प्रैक्टिकल लाइफ से लीड करते हुए एग्जाम्पल्स दिया गया है.
ओके, ऐसा नहीं कि जो एग्जाम्पल्स चले आ रहा है वही एग्जाम्पल नहीं, एक करंट एग्जाम्पल्स, आप किस किस सिचुएशंस में कैसे सिचुएशंस, अगर आप इस सिचुएशन में पड़ जाते हो तो आपको वहां से कैसा निकलना है, all means just like a mathematical calculations they have written the books. Is it clear? Audible? Yes, sir. Okay. ठीक है, आई होप यू अंडरस्टूड व्हाट इज द पीटर, हु इज पीटर ड्रकर, who is Henry Mintzberg and Warren Bennis. Okay, these are the eminent management, you can say thinkers, think tank बोला जाता है इनको। चलिए मैन, प्लीज गो टू द नेक्स्ट स्लाइड। ओके, नाउ अब मैं इसको थोड़ा सा इलेबोरेट वे में बताता हूं। मैनेजरियल स्किल्स, व्हाट इज मैनेजरियल स्किल? नाउ दिस मैनेजरियल स्किल्स has been subdivided into three important categories, or more than that maybe. That is technical skill, interpersonal skill, and conceptual skill. These three skills are very very important: technical skill, interpersonal skill, conceptual skills. Now what is this technical skill? The technical skill is, that is the ability to use specialized knowledge and techniques related to the work being done. This include understanding the process, tool, and equipment used in a particular field. और आज की दौर में ना, this one is very very important. If you are working to any organizations, for any organizations, say for example, you are been in the provisionary period, the organizations will keep you in the provisionary period for say about 6 months or more than 1 month, 1 year. जब भी आप कोई नए कंपनीज ज्वाइन करोगे तो आपको 6 मंथ्स या 1 ईयर का प्रोविजनरी पीरियड रखा जाता है, फॉर 1 ईयर प्रोविजनरी पीरियड। नाउ व्हाट दिस प्रोविजनरी पीरियड इज मीन, यू मीन अबाउट प्रोविजनरी पीरियड क्या होता है? जहां पर आपको जो भी आप पढ़ाई किए हो, सबसे पहले वो चीज आपको डिलीट करेंगे। ध्यान में रखिए, आपने जो भी पढ़ाई पढ़े हो ना, वो सारा कुछ आपसे डिलीट करेंगे, क्योंकि वहां प्रैक्टिकल फील्ड में आपको काम करना है। यू नीड टू वर्क ऑन द प्रैक्टिकल फील्ड, so you need to work accordingly to that. Okay, so now what will you need to do? First of all, they will going to make you understand that how you need to work on that. तो सबसे पहले skills आपको सिखाया जाएगा, you need to understand the skill. Okay, सिखाया जाएगा, and apart from that they will going to make you learn that how to behave, how to talk, how to communicate, and what are the extra skill you need to learn apart from the skill so far you have learned. आपने अब तक जो भी सीखे हो उसके अलावा जितने भी नए स्किल्स है, ऑफिशियल स्किल, पर्टिकुलर फील्ड में जिसका जरूरत पड़ता है, वो आपको सिखाया जाएगा, वो आपको सिखाएगा। दे विल गोइंग टू मेक यू लर्न ऑल दिस। से फॉर एग्जाम्पल, एज अभिजीत यू आर वर्किंग इन टाटा कंपनीज, okay, Tata Pigments and companies, I'm giving your example only. Say for example, when you join this company, the company has make try to make you learn that these are the areas where you have to work, these are the locations you have to go, and these are the skills you need to learn. आपको सिखाया गया है ना, आपको सिखाया गया है, यू हैव टू लर्न। उसके बाद ही आपको उस प्रोसेस के बारे में अंडरस्टैंड करवाया गया है, और तब जाके आपको फील्ड में भेजा गया है। और जब तक आप इस चीज को क्वालिफाइड वे में नहीं सीखोगे, इफ यू अनेबल टू लर्न दिस थिंग, आप तब तक आगे नहीं बढ़ पाओगे। इट इज इम्पॉसिबल फॉर यू टू गो फॉर द लॉन्ग रन। दैट इज वाई टू बीइंग अ स्पेशलाइज्ड in the particular field, if you want to being a specialized in the particular field, then you need to have the great knowledge and technique. Okay, you need to have, or you need to learn a great knowledge and technique. Okay, and apart from that, you need to include, you need to understand the process. आप जितना जल्दी उस चीज को, उस प्रोसेस को, उस टेक्निक को, स्किल को जितना जल्दी अपने आप में अडॉप्ट करोगे,
उतना ही आपका चांसेस ज्यादा रहेगा आगे बढ़ने का। एम आई क्लियर? दैट इज वाई टेक्निकल स्किल इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। और आज के डेट में एआई टेक्नोलॉजिकल वर्ल्ड में जिसका भी स्किल सबसे ज्यादा है उसको सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस एंड प्रायोरिटीज दिया जाता है। एम आई क्लियर? द मोर यू आर स्किल्ड, द मोर you have the chances to go forward. Okay, and this technical skill is also included the process of utilizing the tools. जो भी जहां भी आप काम कर रहे हो, सपोज कोई एक रामाकृष्ण फॉर्जिंग लिमिटेड में, आदित्यपुर स्टील प्लांट में या टाटा स्टील प्लांट में काम कर रहे हो, तो सबसे पहले जरूरी चीज क्या है यहां पर बता रहा है कि टेक्निकल स्किल को अपग्रेड करने के लिए सबसे पहले जो भी टूल्स वहां पर यूटिलाइज हो रहा है, फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट इज द बेसिक ऑफ दिस टूल, हाउ इट वर्क दिस टूल, एंड व्हाट आर द रिक्वायरमेंट्स टू यूटिलाइज दिस टूल प्रॉपरली। इसका रिक्वायरमेंट क्या है कि इस टूल को मैं प्रॉपरली कहां कहां यूज कर सकता हूं। ठीक है, तो सबसे बेसिक चीज है सीखना। यू नीड टू हैव टू लर्न अबाउट द टूल्स एंड अबाउट द इक्विपमेंट्स। ओके, और पर्टिकुलर फील्ड में कौन से टूल्स आप उनका यूज कर सकते हो, इन अ पर्टिकुलर फील्ड व्हाट आर द टाइप्स ऑफ टूल यू नीड टू यूज, वो भी इंपॉर्टेंट है। दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। इज इट क्लियर? टेक्निकल स्किल समझ में आया? इज इट क्लियर टू यू? एनी डाउट? यस सर। क्या डाउट है, बोलो। सर टूल्स का सर हमारा ट्रेनिंग और प्रोसीजर थोड़ा बता सकते हैं? जैसे फॉर एग्जाम्पल ट्रेनिंग और प्रोसीजियर्स। मतलब किस तरह से, मतलब एक सेकेंड, टेक्निकल स्किल मतलब कि किस तरह से होता है, थोड़ा बहुत इसके इसमें से एग्जांपल दे देते तो। सो फॉर एग्जाम्पल मैं एक सिंपल सा इसका एग्जाम्पल देता हूं। एक हम्म, सिंपल बेसिक एग्जाम्पल ध्यान से सुनना। सपोज एक साइकिल दुकान में आप गए, कभी देखे हो कि नहीं साइकिल दुकान जाते हो, कभी गए हो साइकिल दुकान? यस सर। चलो छोड़ो साइकिल दुकान, आपके पास गाड़ी है डेफिनेटली, टू व्हीलर हम्म, है। आप हम्म, जब टू व्हीलर को रिपेयर करने के लिए, सर्विसिंग करवाने के लिए अब जब जाते हो वहां पर, कभी सर्विसिंग सेंटर में या कोई भी सेंटर में दुकान में अब जब जाते हो, कब जब वहां नए लड़के जब काम करते हैं, कभी उस चीज को उनको कभी गौर से देखा है? ऐसा कभी ऐसे कभी जगह पे गए हो? छोड़ो उस चीज को, और सिंपल से एग्जांपल देता हूं, ये टफ हो जाएगा। और सिंपल से एग्जांपल, होटल्स में, मैं एकदम बेसिक से बेसिक में जा रहा हूं, आपको समझ में आ जाएगा। होटल्स में जब आप जाते हो चाय पीने या फिर कोई रेस्टोरेंट में जाते हो, कुछ चाइनीज खाने के लिए जब जाते हो, तो वहां जो मतलब जो कस्टमर, मतलब वहां जितने भी एम्प्लॉइज काम कर रहे हैं, कभी उनको गौर से देखे हो? कभी उनको गौर से देखे हो? उनका सबसे पहले उनका ड्रेस आपने देखे होंगे डेफिनेटली, उसके बाद यस सर। आप अगर उनसे एक ग्लास पानी मांगोगे, तो वो पर्टिकुलर उस जगह पे जाके वहां से ग्लास उठा के पानी वाले जगह काउंटर में जाके पानी आपको लाके देंगे। ठीक है, सपोज वहां पर कोई एक एम्प्लॉय जो है एक नया है, ठीक है, एम्प्लॉय एक नया है। अब आप उस नए एम्प्लॉय को अगर बोलिएगे जाओ मेरे लिए एक एक्सप्रेसो कॉफी बना के लाओ, फर्स्ट ऑफ ऑल जो नए एम्प्लॉय है, ही डजंट नो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कॉफी एंड एक्सप्रेसो कॉफी। मैं एकदम बेसिक से समझा रहा हूं। तो सबसे पहले वो जो कॉफी वाले मशीन पे है वहां वो जाएगा, वहां वो जाने के बाद यहां वहां ताक झाक करेगा, क्योंकि उसका ट्रेनिंग नहीं हुआ है। एक्सप्रेसो कॉफी कैसे बनाना है, फिल्टर कॉफी कैसे बनाना है, सिंपल कॉफी कैसे बनाना है, ही डजंट नो द आर्ट टू मेक द कॉफी। मैं सिंपल से एग्जांपल तुमको दे रहा हूं। तो उसको क्या करेगा, ट्रेनर जो है उसको ट्रेन करेगा। इफ यू वांट फिल्टर कॉफी, दीज आर द प्रोसीड्यूर्स टू प्रिपेयर फिल्टर कॉफी। इसके लिए ये सामान जरूरत पड़ता है, इसके लिए ये कार्डमम, इसके लिए कॉफी पाउडर, शुगर्स थोड़ा सा, मिल्क थोड़ा सा, कॉफी थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। फिल्टर कॉफी इज समथिंग लाइक दैट, टेस्ट इज समथिंग लाइक दैट। थोड़ा सा उसमें बिटरनेस का टेस्ट आना चाहिए, देन ओनली इट्स अ फिल्टर कॉफी।
अगर ज्यादा आप उसमें शुगर ऐड करोगे तो आप फिल्टर कॉफी नहीं बना पाओ। तो दिस इज द मेकिंग प्रोसीड्योर ऑफ मेकिंग अ फिल्टर कॉफी। उसके साथ क्या क्या बर्तन आप यूज कर सकते हो, कैसा वाला बर्तन यूज करना है, किस ग्लास में या किस कप में कितना डालना है, ये सारा कुछ वो ट्रेनर आपको सिखाएगा होटल मैनेजमेंट में। आई एम गिविंग द बेसिक एग्जांपल। तो पहला दिन उसको क्या ट्रेनिंग मिल गया, आपको फिल्टर कॉफी अगर बनाना है क्या क्या सामान लेना है, गैस को कितने धीमी आंच में बनाना है, पानी को कितना उबालना है, कितना कॉफी पाउडर मुझे डालना है, किस चम्मच, व्हाट इज द स्पून साइज ऑफ द, व्हाट इज द स्पून साइज टू मेजर द कॉफी पाउडर, हाउ मच शुगर आई नीड टू ऐड, उसके लिए भी एक अलग से चम्मच, देन ओनली यू कैन मेक अ फिल्टर कॉफी ऑफ दैट। ओके, तो ये सामान, ये पानी की मात्रा इस बर्तन में बनाना है, यही टूल्स है। ठीक है, उसको समझ में आ गया, नए जो एम्प्लॉय है उसको समझ में आ गया, उसको ट्रेनिंग मिल गया, मुझे अगर ये कॉफी बनाना है तो ये मेजरमेंट्स है, ये सामान है, उसका ट्रेनिंग हो गया, वो फिल्टर कॉफी बनाना सीख गया। अब उसे नेक्स्ट लेवल, सपोज उसको एक्सप्रेसो बनाना है, तब उसके लिए फिर अलग सा सामान, अलग सा मेजरमेंट, अलग सा उसका सब कुछ टूल्स, और उसमें फिर बनाने का एक अलग सा तरीका, तब वो अलग से बन के आ जाता है, एक्सप्रेसो कॉफी बन के आ जाएगा। तो आपको अगर टेक्निकल स्किल अपग्रेड करना है तो सबसे पहले टेक्निकल स्किल अपग्रेड करने के लिए सबसे पहले इक्विपमेंट्स, औजार, टूल्स, उस औजार का किस किस जगह पर किस किस टूल्स का यूटिलाइजेशन होता है, सबसे पहले ये जानना बहुत जरूरी है। अच्छा चलो एक और एग्जांपल देता हूं, यहां तक समझ में आ गया, इज इट क्लियर टू यू? यस सर। अब एक और समझ में आता है, आप दुकान में देखे होंगे जब आप बाइक सर्विसिंग के लिए जाते होंगे, जो वहां पर जो काम करने वाला होते हैं उनसे कभी बोलते हैं 12 नंबर पाना लेके आओ, 14 नंबर पाना लेके आओ, हम और आप वो दे नहीं पाएंगे, नहीं दे पाएंगे, क्योंकि हम लोग एफिशिएंट नहीं है, हमें इक्विपमेंट्स के बारे में उतना नॉलेज नहीं है, हमें पता ही नहीं 12 नंबर पाना से कितना बड़ा नट हम ओपन कर सकते हैं, हमें अंदाजा नहीं है। बट वो स्किल्ड वर्कर है, उसको ट्रेनिंग्स मिला हुआ है, उसको पता है कि इतना बड़ा नट बोल्ट में 12 नंबर, 11 नंबर या 7 नंबर का ही पाना लगेगा, और उसी से वो खुलेगा, अलग से कोई भी इक्विपमेंट्स उससे नहीं खुलेगा। इसे कहते हैं ट्रेनिंग स्किल्स, इसे कहते हैं नॉलेज ऑफ इक्विपमेंट्स एंड टूल्स। और सबसे पहले जरूरी चीज आपका मैनेजरियल स्किल में ये टेक्निकल नॉलेज बहुत बहुत जरूरी है। एम आई क्लियर? दिस इज यस कॉल्ड सर। द दिस इज कॉल्ड द टेक्निकल नॉलेज। और कोई डाउट है तो बोलो। नो सर। दिस इज दिस इज कॉल्ड द टेक। और कोई डाउट, मतलब अभी भी डाउट है? 1% भी नो डाउट सर। है कि क्लियर हो गया नो पूरा सर। पक्का? क्लियर हो गया सर। हाँ, ये है टेक्निकल स्किल, दिस इज टेक्निकल स्किल। अब अभिजीत मैं तुम्हारा एग्जांपल दूं, तुम जिस फील्ड में नौकरी करते हो वर्सटाइल स्किल की जरूरत होता है, बहुत सारा स्किल की जरूरत होता है, ऑब्जर्वेशंस का जरूरत होता है, इक्विपमेंट्स का जरूरत पड़ता है। तुम्हें पता है इफ आई मिक्स द कलर विद दिस कलर देन व्हाट विल बी द आउटकम ऑफ द कलर, लेकिन अगर किसी अनस्किल्ड वर्कर को बोलोगे तो वो नहीं कर पाएगा। यहां पर कितना इसका मेजरमेंट्स में इसका टाइल्स फिट करना है, पाइपिंग्स बिठाना है, किस एरियाज में मुझे करना है, कितना मुझे होल करना है, ईच एंड एवरीथिंग आप जानते हो, लेकिन मैं नहीं जान पाऊंगा, मेरे लिए संभव नहीं है। कौन सा मतलब टूल्स मुझे यूटिलाइज करना पड़ेगा टू यूज दिस पर्टिकुलर काइंड ऑफ वर्क, वो भी एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया है, दो दैट इज आई डोंट नो। तो आपने क्या एक दिन में सीख लिया है? डू यू फील दैट आई लर्न इन अ वन डे? नो सर। नो, यू नीड गो ऑन प्रैक्टिसिंग, गो ऑन ट्रेनिंग। आपने अब जितना ट्रेनिंग्स लिया है, सीखने के लिए कोशिश किया है, उतना ही आपका स्किल अपग्रेड हुआ है। Same is like that only. Okay, if you want to upgrade your technical skill, then you have to know, learn the knowledge of the equipments and the knowledge of the tools, then only you can able to do the work, that is technical work. Okay, technical का मतलब होता है आप इक्विपमेंट्स और टूल्स के कितना आपको नॉलेज है। सपोज सिंपली आप लैपटॉप चला रहे हो, आर यू एबल टू रन द लैपटॉप? इज इट क्लियर? लैपटॉप चला लेते हो पूरा? ऑलमोस्ट सर। ऑलमोस्ट चला लेते हो।
अगर विंडोज में आपका कोई वायरस हो गया है, आप विंडोज को बिना एंटीवायरस यूज करते हुए आप वायरस क्लीन कर पाओगे? विल इट पॉसिबल फॉर यू? नहीं। सर आपके फिर तो नहीं, फॉर्मेट करना पड़ेगा आपको या फिर रिफ्रेश करना पड़ेगा। चलिए, आपने कहा सर मुझे फॉर्मेट करना पड़ेगा, मुझे रिफ्रेश करना पड़ेगा। दिस इज कॉल्ड द स्किल। अब मैं इस स्किल को थोड़ा सा अपग्रेड करता हूं। स्किल अपग्रेडेशन कैसे करते हैं, मैं आपको बता रहा हूं। विंडोज रन लिख करने के बाद वहां पर टेम्प लिखी गया, TEMP, उसके बाद ओके कीजिएगा। जितने भी अनवांटेड फाइल्स है उसको वो स्कैन करके, अगर उसमें वायरस है वो डिटेक्ट करके उसको टेम्पोररी फाइल में ट्रांसफर करके उस फाइल को डिलीट करके आपका कंप्यूटर पूरा रिफ्रेश करके देगा। नो नीडेड टू यूज द एंटीवायरस। नाउ दिस इज द डिफरेंस बिटवीन स्किल एंड स्किल अपग्रेडेशन। आपके पास स्किल है लेकिन आपने उस स्किल को अपग्रेड और आगे नहीं बढ़ाया है। मैंने अपना स्किल को थोड़ा सा आगे बढ़ाया है, इसलिए मुझे नॉलेज है। इसके बाद मैं अगर उस कंप्यूटर विंडोज और रन करके एक और कोड है सर्वर डॉट ओ आर जी करके रन करवाता हूं, तो जितना मतलब प्लेगरिज्म, लॉट ऑफ एंड वायरस है, वो पूरा टोटल 90% स्कैन करके मुझे फ्रेश रन करके देगा। और मेरा लैपटॉप पिछले बार से ज्यादा बैकअप स्टोरेज खाली करके ऊपर से वायरस क्लीन करके फास्ट करके मुझे लैपटॉप दे देगा। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन स्किल्ड वर्कर, टेक्निकल स्किल वर्कर एंड मोर अपग्रेडेड टेक्निकल स्किल वर्कर। ओके, ये है बेसिक डिफरेंस। ओके। क्लियर है? यहां तक क्लियर है? यस सर। Okay. Now, the next one is what is interpersonal skill? Interpersonal skill किसे कहते हैं? The ability to communicate effectively. देखो ध्यान से देखो, I tried my best to keep this PowerPoint. मैंने जो ये PowerPoint बनाया है, मैंने AI का हेल्प लिया है। I take the help of an AI. I take the help of an AI because मेरे लिए इतना सारा स्लाइड्स बनाना मुश्किल था, नामुमकिन था, और वो भी इतना डिफाइंड वे में पिक्चर ड्रॉ करने के लिए। ये सिंपल सा पावर पॉइंट में नहीं हुआ है। दिस इज एआई टेक्नोलॉजीज आई हैव यूज्ड, और उसके बाद इस कंटेंट को डाला है, तब जाके इतना सुंदर पीआई बना है। अपना लैपटॉप में कभी इसको ओपन करके देखे हो? देखो ओपन करके, कितना फॉर्मेटिंग्स, कितना अपग्रेडेड, इसका कलर टेक्सचर मैच करके देखे हो? यस सर, गामा। दिस इज द टेक्निक। अब तुम सिंपली गामा करके इसको यूज नहीं कर पाओगे। बहुत सारा ओके। इसमें बहुत सारा इसमें आपको फीचर्स है जिसको आपको पहले जानना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा, उसके बाद आप इस चीज को यूज कर पाओगे। ठीक है, बहुत कुछ अच्छा। अपग्रेडेशन है इसमें। यू हैव टू लर्न आप कंटेंट कैसे डालिएगा, उसके बाद कंटेंट को आप किस साइज में आपको चाहिए, कितना कंटेंट्स चाहिए, कितना वर्ड्स चाहिए, क्या क्या कंटेंट्स चाहिए, उसको लिख के दीजिए, उसको डिजाइन करके वो फिर आपको दे देगा। आई हैव टू प्रिपेयर दिस कंटेंट फर्स्ट। मुझे ये सारा कंटेंट्स मुझे एमएस वर्ड में क्रिएट करना पड़ा, तब जाके। तो दिस इज कॉल्ड द स्किल्ड वर्कर। आज की दौर पे अभिजीत हमेशा याद रखना, आज की दौर पे स्मार्ट वर्क चाहिए, स्किल्ड वर्क चाहिए, हार्ड वर्किंग नहीं। हार्ड वर्किंग तो एक किसान भी करता है, लेकिन स्मार्ट वर्क जितना आप करोगे ज्यादा, उतना ही आपका वैल्यू बढ़ेगा। स्मार्ट वर्क नाउ इट इज all over the world, the people want smart work from you. अगर मैं इसे सिंपल सा पावर पॉइंट पे भी बना सकता हूं, इट इज नॉट इट्स क्वाइट वेरी इजी सिंपल। मैं स्लाइड्स ओपन करूंगा, एकदम क्लीन एंड क्लीन वाला स्लाइड्स ओपन करूंगा, उसका हेडिंग्स दूंगा और एक करके बनाते रहूंगा। लेकिन मेरे लिए वो टाइम वेस्ट है, बहुत सारा टाइम मेरा किल कर देगा। डेफिनेटली इट विल गोइंग टू किल मेनी ऑफ टाइम। मैं जब ये स्लाइड्स हाफ एन आवर में बना रहा हूं, मे बी दैट पर्टिकुलर स्लाइड विल गोइंग टू टेक वन मोर देन 1 आवर, मोर देन 1+ आवर। 1-1.5 घंटा मेरा वो स्लाइड्स बनाने में, क्योंकि 10 स्लाइड्स उसको अलग अलग करके उसका कंटेंट डालना, उसके बाद उसे शॉर्ट प्रिसाइज करके, उसके बाद वो टाइम लगता है। दिस लॉन्ग टाइम प्रोसेस। तो अब क्या कर रहा हूं मैं नाउ, स्मार्ट वर्क कैसे?
First of all, I create my contents in MS Word. Managements के बारे में, what is management, what is the introduction of management, what should be the features of management, what are the thinkers of the management, how many types of managements are there, what is the role of management, each and every things इसको मैंने MS Word में प्रिपेयर किया. क्वेश्चन एंड आंसर कितना होना चाहिए, इसका कितना कंटेंट्स होना चाहिए, कितना वर्ड में इसको रखना चाहिए, डेफिनेशंस थोड़ा सा इजी रखना चाहिए फॉर द स्टूडेंट्स. ये सारा कुछ कैलकुलेट करके मैंने MS Word में बनाया. उसके बाद मैंने AI यूज किया. रेडी? दिस इज कॉल्ड स्मार्ट वर्क. Now this interpersonal, sorry, now come to this interpersonal skill. This interpersonal skill is the ability to communicate effectively. देखिए अभिजीत, मैं एक बात बताता हूं. आप एमबीए पढ़ाई कर रहे हो, मुझे बहुत अच्छा लगा. आपने मुझे कहा था सर एमबीए में क्या स्कोप है, जब मैंने आपका बीबीए पढ़ा रहा था. यू हैव आस्क्ड मी सर व्हाट आर द स्कोप्स इन एमबीए. देन आई टोल्ड यू दैट दीज आर द स्कोप्स इन एमबीए, एंड इफ यू कंटिन्यू with your MBA, then definitely you can be able to go in a good positions. आप बहुत आगे जाओगे. और आपने मेरी बात रखे हो और आपने MBA की हो. तो अभिजीत, नाउ आई एम टेलिंग यू, MBA कर लिए हो, कोई बातें कर रहे हो, इट्स वेरी वेल एंड गुड. लेकिन अगर आपका कम्युनिकेशंस इफेक्टिव नहीं है तो फिर आपके लिए फिर थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा. क्योंकि कम्युनिकेशंस अगर इफेक्टिव नहीं है, दैट इज थोड़ा सा दिक्कत हो जाएगा. तो इसीलिए कम्युनिकेशन इफेक्टिव वे में आपको कम्युनिकेट करना पड़ेगा. ओके, व्हाई? बिकॉज थ्रू योर इफेक्टिव कम्युनिकेशन यू कैन बिल्ड अ वेरी गुड रिलेशनशिप. इफेक्टिव कम्युनिकेशन का मतलब ये नहीं कि आई हैव टू कम्युनिकेट विथ माई क्लाइंट्स एंड एम्प्लॉइज इन इंग्लिश ओनली. दैट इज नॉट, दैट इज अ प्रायोरिटी, that is compulsory, but that doesn't mean that continuously you have to speak with your clients or customers in English. No, but whatever the language through which you communicate with your customers, with your client, you must communicate effectively. आपका जो communications हुआ effectively. अब effectively का मतलब क्या है? Impactful communication, fruitful communication. ठीक है? कम्युनिकेशंस जो होगा वो फ्रूटफुल कम्युनिकेशन होगा. इफेक्टिव कम्युनिकेशन ये है इफेक्टिव, दैट इज कॉल्ड इफेक्टिव कम्युनिकेशन. फॉर एग्जांपल, किसी ने आपसे कहा कि मुझे मेडिकल शॉप जाना है, सोनारी मेडिकल शॉप जाना है. सपोज उसने नाम दिया सोनारी मोदी डायग्नोस्टिक सेंटर मेडिकल शॉप, जहां मेडिसिन का बहुत बड़ा रिटेल है, जाना है सोनारी. दो रास्ता है, या तो आप कदमा होके जा सकते हो. अगर जो इंसान कदमा में रहता है, सपोज कोई मतलब कोई भी ह्यूमन बीइंग, अगर वो चाहता है, कोई भी पर्सन चाहता है कि मैं कदमा होके जाऊं, तो देयर इज वन वे फ्रॉम कदमा डायरेक्टली यू कैन स्ट्रेट अवे through air, through, you need to catch the road of an airport road, and airport road you need to turn left, Sonari, and from there you need to go straight. There is one I forget that particular area location. You can get down to that location, and near on the road only you can find Modi Diagnostic Center, a big retailer in medicines. Now suppose if a person coming from Sakchi, then how you will going to give the address? How will you going to give the address? अब कोई बेवकूफी होगा, उसको बताएगा कि सबसे पहले आप कदमा आइए, कदमा आने के बाद एयरपोर्ट रोड से आप फिर बाएं तरफ मुड़ जाइए, आपको सोनारी मिलेगा. बेवकूफ, वो कम्युनिकेशन इफेक्टिवली नहीं है. आपको शॉर्ट प्रिसाइज टू द पॉइंट लोकेशन आपको बताना है. कैसे बताओगे? कम फ्रॉम सक्ची स्ट्रेट, किसको वाला रोड पकड़ लीजिए, सॉरी आप टीएमएच वाला रोड पकड़ लीजिए, सीधा अंडरग्राउंड डाउन अंडर, उस रोड से सीधा चले आइए, आप डायरेक्टली सोनारी अंदर आ जाइएगा. उसमें वो जगह लोकेशन है जहां पर मोदी डायग्नोस्टिक सेंटर सबसे बड़ा रिटेलर शॉप मौजूद है, स्ट्रेट अवे. तो ये जो कम्युनिकेशन मैंने किया, ये इफेक्टिव कम्युनिकेशन, मतलब फ्रूटफुल कम्युनिकेशन निकला. इसका कोई रिजल्ट आपके पास आना चाहिए. थैंक यू, ये है रिजल्ट. ऐसा नहीं कि सर समझ में नहीं आया, तो वो कम्युनिकेशन फिर फ्रूटफुल नहीं हुआ. जैसे मैं आपको समझा रहा हूं,
इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन क्या है, और बार बार पूछ रहा हूं कि अभिजीत वेदर यू अंडरस्टूड और नॉट। अगर आप मुझसे कहोगे नो सर आई कुडंट अंडरस्टैंड, इसका मतलब क्या है, मेरे और आपके मैं जो समझा रहा हूं आपको, वो समझाना फ्रूटफुल नहीं हुआ है, इफेक्टिव नहीं हुआ है। क्यों? आपको समझ में नहीं आया। लेकिन जब मैंने आपको टेक्निकल स्किल के बारे में विथ लॉट ऑफ एग्जांपल्स मैंने आपको समझाया, एट लास्ट यू टोल्ड मी यस सर आई अंडरस्टूड, इसका मतलब मेरा जो समझाना हुआ इट कम्स इफेक्टिव, इसका इफेक्टिव रिजल्ट मुझे दिखा, फ्रूटफुल रिजल्ट दिखा। क्या? कि अभिजीत को समझ में आ गया। तो दिस इज कॉल्ड इफेक्टिव कम्युनिकेशन। कुछ ना कुछ फ्रूटफुल रिजल्ट उसमें से आना चाहिए, दैट इज कॉल्ड इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन। बोलो समझ में आया? इफेक्टिव का मतलब क्या यहां पर समझा रहा है, कम्युनिकेशन इफेक्टिवली का मतलब क्या? आप लोग पकड़ लेते हो यस। कि कम्युनिकेशन इफेक्टिवली मतलब क्या है, आई नीड टू स्पीक एनी हाउ इन इंग्लिश। नो, दो इंग्लिश इज कंपल्सरी बट दैट डजंट मीन you need to communicate with everyone in English. Suppose the person who don't know English, if you communicate with him in English, it's a foolish thing. If you communicate with an auto driver or a rickshaw puller within English, then he will look after you and say this guy gone mad. Okay, so effective communication होना चाहिए, being depends on a person. It depend on a person कि आप कैसे, किसके साथ, किस तरह का आंसर वो चाह रहा है, और आप उसके आंसर के भी आप में किस तरह का कम्युनिकेशन कर रहे हो। इट कंप्लीटली डिपेंड ऑन अ पर्सन। सपोज एक रिक्शा वाला या ऑटो ड्राइवर आपसे हिंदी में पूछ रहा है कहां जाना है, आपने इंग्लिश में जवाब दे रहा है आई वॉन्ट टू गो टू द टाटानगर रेलवे स्टेशन, विच वे आई नीड टू गो। डेफिनेटली द ऑटो ड्राइवर विल लाफ एट यू एंड अदरवाइज ही विल से ये इंसान पागल है, मैं हिंदी में सवाल कर रहा हूं, ये बेवकूफ मुझे इंग्लिश में जवाब दे रहा है। वो गुस्सा हो जाएगा, हो सके तो तुमको मारने चला आए, क्योंकि उसे पता चल गया कि आप मुझे इंसल्ट कर रहे हो, मैं इंग्लिश नहीं जानता हूं, आप इंग्लिश बोल के इंसल्ट कर रहे हो। तो कम्युनिकेशन का मतलब सिर्फ ये नहीं कि आप किस भाषा में बात कर रहे हो, कम्युनिकेशन का मतलब ये भी है कि आप किससे बात कर रहे हो और वो आपसे कैसा जवाब चाह रहा है, और वो किस भाषा में आपसे सवाल पूछ रहा है। डिपेंड ऑन दैट यू कम्युनिकेट। अब वो कम्युनिकेट का जो रिजल्ट आएगा दैट विल बी एन इफेक्टिव कम्युनिकेशन। क्लियर? इफेक्टिव कम्युनिकेशन का मतलब। यस सर। अब देखो अभिजीत, पावर पॉइंट में ना ये जो स्लाइड्स मैंने बनाया है, अब इतना डिटेल्स तो अगर लिखने के लिए जाऊंगा तो फिर वो स्लाइड नहीं रहेगा, वो नोट्स बन जाएगा। ठीक है, यहाँ इफेक्टिव कम्युनिकेशंस का एक मतलब नहीं होता है, यहाँ इफेक्टिव कम्युनिकेशंस का बहुत दो मतलब निकलता है, इसीलिए मैंने आपको ये चीज ओरली समझाया। अच्छा, नाउ दिस इफेक्टिव कम्युनिकेशंस, अगर आपका इफेक्टिव कम्युनिकेशंस इफेक्टिव रहता है, देन यू कैन बिल्ड अ वेरी गुड रिलेशनशिप, you can motivate others, you can motivate the work collaboratively, and this include। अच्छा, ठीक है, अगर आपका इफेक्टिव लिसनिंग आप अगर अच्छे से करते हो तो उसका क्या क्या इंपैक्ट गिरेगा, व्हाट विल बी द इंपैक्ट, और व्हाट आर द इंपैक्ट्स ऑन अदर्स, उसका क्या, यू विल गोइंग टू बिल्ड अ वेरी गुड रिलेशनशिप। ठीक है, आप एक अच्छा रिलेशनशिप बिल्ड करोगे। अपार्ट फ्रॉम दैट यू कैन मोटिवेट अदर्स, आप अपना इफेक्टिव कम्युनिकेशंस को लेके मोटिवेट कर सकते हो। शायद मैं मेरा स्पीच सुन के आप कुछ मोटिवेट हुए होंगे, जिसकी वजह से आपने एमबीए को चूज किया। When I listened from ma'am, Poulomi ma'am, that Poulomi ma'am told me that Abhijit has taken admission in MBA, I was little bit surprised and I was happy also that this guy has got a dedication, and anyhow he want to make changes in his life, he want to make achievements in his career। जब जिस दिन मुझे पता चला कि अभिजीत has taken admission in MBA, I was literally very happy that ये बंदा मेहनत करता है, काम करने थैंक भी यू सर। जाता है, फिर भी आके एमबीए में एडमिशंस लिया है। दैट्स वेल एंड गुड, और डेफिनेटली ये आगे बढ़ेगा,
ये शाइन करेगा. And when Polu Mamas told me that he has taken admission in MBA, and I was really very happy. And to the some extent, I was surprised कि वो cope up कैसे करेगा, manage कैसे करेगा. Then ma'am told me, sir, थोड़ा सा पावर पॉइंट इन लोगों को बता दीजिए. मैंने जब तुम लोगों को बीबीए पढ़ाया था, मैंने इस तरह का पावर पॉइंट नहीं बनाया था. आपको याद है कि नहीं पता नहीं मुझे. मैंने आपको Yes. लिखवाया था, आई मेक यू Hmm. राइट, Yes, आई sir. मेक यू आई आई मेड यू राइट. And also I have just going and giving you the lectures, but now I have changed this way of giving the tuitions or online classes to my students. Ma'am told me, sir, power points में इन लोगों को दीजिए, that will be much better. Notes भी मिल जाएगा इनका और समझ में आ जाएगा, और कुछ भी अगर डाउट्स रहेगा they can clear there only. तो फिर मैंने अपना स्ट्रेटेजीज को थोड़ा चेंज किया. मैं किताब से ही पढ़ाता था. फिर मैम ने मुझे कहा कि सर, इन लोगों को थोड़ा सा पावर पॉइंट में सब्जेक्ट के बारे में नॉलेज हो जाएगा, तो आप वो पावर पॉइंट में दीजिए. देन आई प्रिपेयर्ड स्लाइड्स फॉर यू पीपल ओनली. पावर पॉइंट, मैंने वो पावर पॉइंट में फिर स्लाइड्स बना के आप लोग को भेजा. दैट विल बी मच हेल्पफुल फॉर यू. दिस इज द इफेक्टिव और टेक्निकल स्किल आई हैव यूज्ड. और ये जो मैं आपको समझा रहा हूं, ये कम्युनिकेशन जो हो रहा है आपके बीच में और मेरे बीच में और जो रिमेनिंग स्टूडेंट्स है इस ऑनलाइन क्लासेस में, इफेक्टिव कम्युनिकेशन हो रहा है, जिसका रिजल्ट क्या आएगा. आपको मोटिवेट हुए हो, यू गॉट मोटिवेशन, जिसकी वजह से आपने एमबीए एडमिशन लिया है. कम्युनिकेशंस मेरा Yes, sir. इफेक्टिव हुआ है, जिसकी वजह से आप मोटिवेट हुए हो, आप एमबीए में एडमिशंस लिए हो, और क्या है, एक अच्छा स्ट्रॉन्ग अ वेरी गुड रिलेशनशिप आपके साथ मेरा जुड़ गया है, दैट यू आर माई वेरी गुड स्टूडेंट. ओके. Yes. तो इफेक्टिव Hmm. कम्युनिकेशन इसे कहते हैं. दिस इज कॉल्ड इफेक्टिव कम्युनिकेशन. कुछ ना कुछ इसका फ्रूटफुल रिजल्ट आना चाहिए, तब जाके ये कम्युनिकेशंस को हम इफेक्टिव मानते हैं. ठीक है. आज मैं जिस दिन तुमको ये मोटिवेशन मैंने किया था, अगर तुम एडमिशन नहीं लेते, आज छोड़ देते, तो मैं समझता हूं कि शायद मेरा मोटिवेशन इफेक्टिव नहीं था. मैंने जो कम्युनिकेशंस मैंने मोटिवेट करने की कोशिश किया अभिजीत को, माइट बी नॉट effective to Abhijit, and might be my communication is not so much effective, which make an impact, which can create an impact on Abhijit. That's why I fail to motivate Abhijit. मैं बाद में यही सोच लेता कि चलो मेरा कम्युनिकेशंस में कोई कुछ खामियां रह गई है, जिसकी वजह से अभिजीत को मैं मोटिवेट नहीं कर पाया. तो इफेक्टिव कम्युनिकेशंस का ये एक फायदा है. देखो फायदा दिख रहा है ना, आपने मोटिवेट होके एमबीए ज्वाइन कर लिया, वेरी गुड. ठीक है. Thank you, sir. मे बी यू कैन गेट एन ऑनलाइन कैंपस, उसकी जरूरत नहीं है. आप बहुत सारा ऐसा, आप जॉब मिल जाएगा यार, डोंट वरी, जॉब अच्छा मिलेगा. अच्छा, लेकिन इंटरपर्सनल स्किल्स में 3-4 चीजें बहुत जरूरी है. व्हाट आर दिस? एक्टिव लिसनिंग. आप जैसे मुझे सुन रहे हो, यू कैन से एक्टिव लिसनिंग, विच इज वेरी मच इंपॉर्टेंट. एक्टिव लिसनिंग. आपके बगल, आप माइक ऑन करके मुझे सुन रहे हो, योर माइक इज ऑन, बट लॉट ऑफ नॉइज आर कमिंग. आई हियर्ड, whether you don't know whether you are outside or whether you are sitting in your room and taking my online class or not, that I don't know, but lot of Sir, noise are coming, background noise. I'm sitting in my room. Okay, lot of background noises are coming, but still you are listening to me very actively. This is called active listening. तो इसका एक इंटरपर्सनल स्किल का एक और हेल्पफुल रिजल्ट निकलता है कि आपको एक एक्टिव लिसनर बनाता है, जो कि बहुत जरूरी चीज है, एक्टिव लिसनर बनना. उसके बाद एम्पैथी. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एम्पैथी? मैंने शायद तुम लोगों को समझाया था. क्रिएट अ गुड रिलेशनशिप बिटवीन अ कम्युनिकेटर. एम्पैथी क्रिएट करना, आपके साथ जुड़ना, दैट इज एम्पैथी. आपके दुख के साथ जुड़ना, आपके सुख के साथ जुड़ना, आपका क्वालिटी टाइम के साथ जुड़ना, आपके बुरा वक्त के साथ जुड़ना, ये भी एक अच्छा इंटरपर्सनल कम्युनिकेशंस करवाता है. तो इंटरपर्सनल कम्युनिकेशंस का ये एक फायदा है, एम्पैथी क्रिएट करना बिटवीन अ रिसेप्टर एंड बिटवीन अ कम्युनिकेटर. ओके, दिस इज कॉल्ड एम्पैथी. देन
कन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन, अगर कुछ गलत फहमी हमारे बीच में अगर पनपता है, वो भी इस इंटरपर्सनल इफेक्टिव कम्युनिकेशन के माध्यम से वो फिर डिस्ट्रॉय हो जाता है। अगर कुछ कंफ्लिक्ट रेज हो रहा है, कुछ ऐसा पॉइंट्स है जो आप बिलीव नहीं करते हो, मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं, तो आपके बीच में और मेरे बीच में कुछ अनबनी तू मैं हो गया, तो हमने एक कम्युनिकेशन आपके साथ रखा। वो कम्युनिकेशन जब इफेक्टिव हुआ, तब ये जो रेजोल्यूशन था, ये जो कंफ्लिक्ट था, वो फिर रिजॉल्व हो गया। तो इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन कभी कभी ये कंफ्लिक्ट को भी रिजोल्यूट करता है। दिस इज कॉल्ड, दिस इज द pros of interpersonal communication. Apart from that, this effective communications, interpersonal communications can build a team. It can create a team building skills, और वो आपको टीम बिल्डिंग स्किल क्रिएट करने में भी बहुत सारा हेल्प करेंगे। सो दीज आर द प्रोज ऑफ इंटरपर्सनल स्किल, और दीज आर द इंपॉर्टेंट points and significance of interpersonal skills. Now, the next point is conceptual skill. What is conceptual skill? Conceptual skill का मतलब क्या होता है? The ability to think strategically, analyze, compare in a complex situation, and develop innovative solutions, उसे कहते हैं कंसेप्चुअल स्किल। चलिए, अब अभिजीत, मैं तुमको एक एग्जांपल देता हूं, तुम्हारा ही मतलब जॉब रिलेटेड एग्जांपल देता हूं। मैंने बहुत बार तुमसे कहा है अभिजीत, जब तुम जो काम कर रहे हो अभी, उसमें इस तरह का कस्टमर्स कभी तुमसे भेंट हुआ है जो थोड़ा सा टॉक्सिक कस्टमर्स है? यू नो व्हाट्स द मीनिंग ऑफ टॉक्सिक? यस सर। तो कभी ऐसा हुआ है जो, अब तुम टाटा पिगमेंट्स में ही हो ना, यू वर्किंग इन द टाटा पिगमेंट्स राइट नाउ ना? एशियन पेंट। हाँ एशियन पेंट सर। हाँ, यस, सॉरी सॉरी, एशियन पेंट्स, अ वेरी गुड एंड रिनाउंड कंपनी एशियन पेंट्स। तो अभिजीत, तुम मुझे बताओ, जब तुम ये काम वाम करते हो, तो कभी तुमको ऐसा क्लाइंट मिलता है जो बहुत टॉक्सिक है, जिसका बिहेवियर बिल्कुल अच्छा नहीं है? यस सर, हमेशा मिलते हमेशा रहता है। मिलते रहता है। तो उस सिचुएशंस में आप अपने आप को कंट्रोल डेफिनेटली करते होंगे, बिकॉज यस आप सर। धीरे धीरे बहुत मैच्योर हो गए हो, एक्सपीरियंस आपका बहुत हो गया है। तो आप अपने आप को कंट्रोल करते हो, और उस टॉक्सिक कस्टमर्स को आप हैंडल करते हो अपने दिमाग से, पोलाइटफुल। पोलाइट से, अपना दिमाग से उस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हो, अपना बुद्धि लगा के सॉल्व करते हो, और एनालाइज करते हो कि इस तरह का कस्टमर्स अगर मेरे पास आता है, तो मैं इस तरह से इसे हैंडल करूंगा। अगर ये कॉम्प्लेक्स सिचुएशन अराइज होता है, देन आई विल गोइंग टू मीट विद दिस स्ट्रेटेजीज विद दोस कस्टमर्स। इस तरह का स्किल को कंसेप्चुअल स्किल कहते हैं। अभिजीत, मैं, मेरा एग्जाम्पल्स इतना सारा देने का एक ही मतलब है, मतलब ये है, देखो, एमबीए जो है इज ऑल अबाउट द रेफरेंस एंड एग्जाम्पल्स। आप सिर्फ और सिर्फ खाली नोट्स लिख के आ जाओगे, पॉइंट्स लिख के आ जाओगे, तो आपको नंबर डेफिनेटली मिलेगा, लेकिन आपके बगल वाला दोस्त को हो सकता है आपसे ज्यादा नंबर मिले। क्यों? उन्होंने साथ ही साथ अच्छा सा एग्जाम्पल्स भी उनके साथ दिया है, और एग्जाम्पल्स अगर आप याद रखोगे, तो आपको डेफिनेशंस उतना याद नहीं रखने से भी चलेगा। आप सिर्फ और सिर्फ एग्जाम्पल्स लिख के आ जाओगे, तो भी आपका आपको नंबर मिलेगा। क्यों? बिकॉज आपको कंसेप्ट क्लियर है, यू हैव अ वेरी क्लियर कंसेप्ट अबाउट दिस स्किल्स। एम आई क्लियर? इसीलिए एमबीए में बहुत सारा एग्जाम्पल्स, और एग्जाम्पल्स अगर आपको क्लियर है, तो कोई भी क्वेश्चन आंसर आपके पास आए, तो आप डेफिनेटली उसे सॉल्व कर दोगे। एम आई क्लियर? यस सर। तो दिस इज कॉल्ड कंसेप्चुअल स्किल। कंसेप्चुअल स्किल का मतलब होता है द पर्सन हु थिंक स्ट्रेटेजिकली, हु कैन थिंक एंड एनालाइज कॉम्प्लेक्स सिचुएशन, मतलब टफ सिचुएशन, हार्ड सिचुएशन, एंड डेवलप
इनोवेशन सॉल्यूशन, और साथ ही साथ न्यू, इनोवेशन का मतलब नया, सॉल्यूशंस लेके आना, ठीक है, इसे हम कंसेप्चुअल स्किल्स कहते हैं। दिस इंक्लूड अंडरस्टैंडिंग हाउ डिफरेंट पार्ट्स ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन फिट टुगेदर। फॉर एग्जाम्पल, अभी तो आप अभिजीत बहुत एक्सपीरियंस हो चुके हो वर्किंग इन एशियन पेंट्स, कभी एशियन पेंट से भी बड़ा कंपनी अगर आपको आता है, आप वहां पर ज्वाइन करते हो, तो वहां पर आपका जो एक्सपीरियंस है सबसे ज्यादा काम आए। इस सिचुएशन में मैं पड़ यस गया सर। हूं, इस सिचुएशन से मैं कैसे निकलूंगा, मुझे ये प्रॉब्लम्स दिया गया है, इस प्रॉब्लम्स को मैं कैसे सॉल्व करूंगा, कैसे एनालाइज करूंगा, स्ट्रेटेजिकली मैं कैसे इस चीज को सॉल्व करूंगा, ये सारा जो प्रोसेस है इसे कंसेप्चुअल स्किल्स कहते हैं। तो आई थिंक, आई होप यू अंडरस्टूड व्हाट इज टेक्निकल स्किल, व्हाट इज इंटरपर्सनल स्किल, एंड व्हाट इज कंसेप्चुअल स्किल। एम आई क्लियर? यस सर, आई अंडरस्टैंड। ओके, यू अंडरस्टूड ना, वेरी गुड। और कोई डाउट्स? सर नो डाउट सर। वेरी गुड, यू डोंट हैव एनी डाउट? ओके, नो सर। ओके मैम, प्लीज गो टू द नेक्स्ट स्लाइड, दैट इज लास्ट स्लाइड। ओके, नाउ जॉब्स ऑफ ए मैनेजर। अब तक तो जो तुमने पढ़ा, मैनेजमेंट के बारे में पढ़ा, स्किल्स ऑफ मैनेजमेंट, ओके, ये सब पढ़ा। अब एक मैनेजर का जॉब रोल क्या होता है? व्हाट इज द जॉब रोल ऑफ अ मैनेजर? देखो, पहला है प्लानिंग एंड गोल सेटिंग। दिस इज द फर्स्ट job of a manager, is to plan and set a goal. नेक्स्ट है ऑर्गेनाइजिंग एंड स्टाफिंग। गोल सेट करने के बाद आप उसको कितने अच्छे तरीके से ऑर्गेनाइज करते हो, और स्टाफिंग मतलब अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट्स आप उसमें कहां कहां स्टाफ का यूटिलाइजेशन कर सकते हो, ये है। थर्ड है डिरेक्टिंग एंड लीडिंग, उसके बाद मोटिवेटिंग एम्प्लॉइज, कम्युनिकेटिंग इफेक्टिवली, रिजॉल्विंग कॉन्फ्लिक्ट एंड इंस्पायरिंग द टीम वर्क। दिस इज ऑल्सो अ जॉब और ऑफ अ मैनेजर। एंड द लास्ट इज कंट्रोलिंग एंड इवेल्युएटिंग, मीन्स monitoring the progress, resulting performance, and taking collective actions to ensure objectives as are objective as well. So these are the jobs of a manager. Number one है planning and goal setting. Now what is the planning and goal setting means? देखो नीचे मैंने छोटा सा इसका की नोट्स दिया है, प्लानिंग ए गोल सेटिंग का की नोट क्या क्या हो सकता है? डेवलपिंग स्ट्रेटेजीज, यू नीड टू डेवलप द स्ट्रेटेजीज। सेटिंग ऑब्जेक्टिव्स, नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव सेट करना, गोल सेट करना। उसके बाद जो गोल सेट किए हो उसमें काम करना, प्लान तैयार करना, और उसके बाद अचीवमेंट्स ऑफ अ गोल, आपके उसके बाद आप जाइए और अचीव कीजिए। ये होता है पहला जॉब रोल ऑफ अ मैनेजर। आपको अगर कोई कंपनी का मैनेजर बना दिया गया है, मैनेजर एग्जीक्यूटिव, द फर्स्ट इंपॉर्टेंट रोल ऑफ यू इज टू प्लान, you have to make a plan, okay, and according to that you need to work. तो पहला है प्लानिंग एंड सेटिंग, दूसरा है ऑर्गेनाइजिंग एंड सेटिंग। ऑर्गेनाइजिंग सेटिंग का मतलब होता है नाउ योर गोल इज सेट, नाउ अकॉर्डिंग टू द गोल यू नीड टू क्रिएट अ स्ट्रक्चर। अब उसमें एक स्ट्रक्चर आपको बनाना है, मतलब प्लान बनाना है, रूटीन बनाना है, टाइम टेबल सेट करना है। उसके बाद जो जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज जिसको जिसको आपको लगता है कि ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज लेने के लायक है, आप अपना रिस्पॉन्सिबिलिटीज, अपना गोल, अपना वर्क डिवाइड कर दीजिए टू योर एम्प्लॉइज। उसके बाद क्या होता है? एम्प्लॉइज को रिक्रूट करना, ये तो आपको पता है। नेक्स्ट है डायरेक्टिंग एंड लीडिंग।
मोटिवेटिंग एम्प्लॉइज, कम्युनिकेटिंग इफेक्टिवली, रिजॉल्विंग कन्फ्लिक्ट एंड इंस्पायरिंग टीम वर्क। उसके बाद आपको लीडिंग करना है अपना टीम जो आपने तैयार किए हो गोल अचीव करने के लिए, उसके लिए आपको पहले से लीड करना पड़ेगा। आपको अपने एम्प्लॉय से कम्युनिकेट करना पड़ेगा और वो कम्युनिकेशन जो है इफेक्टिव एंड फ्रूटफुल होना चाहिए। उसके बाद कुछ भी कंफ्लिक्ट एम्प्लॉयज के बीच में होगा आप उसको रिजॉल्व करेंगे, ये आपका दूसरा रोल है। और उसके बाद आप अपने टीम को हमेशा इंस्पायर करते रहिएगा कि आप अच्छा कर सकते हो। ये है जॉब रोल ऑफ अ मैनेजर। लास्ट, कंट्रोलिंग एंड एवेल्यूटिंग मीन्स उसके बाद आपको मॉनिटरिंग करना पड़ेगा। वट एवर क्या काम दिए है वो काम बन रहा है कि नहीं, कितना दूर तक वो काम गया है, काम एफिशिएंटली हो रहा है कि नहीं, कोई एम्प्लॉयज छुट्टी में है क्या आज, ये सारा कुछ को कहते हैं ऑब्जर्वेशन या मॉनिटरिंग। उसके बाद मेजरमेंट ऑफ अ परफॉर्मेंस, जो जो काम आपने जो जो डिवाइड करके अपने एम्प्लॉयज को दिए है कितना काम वहां से सक्सेसफुली आप वापस करके वो लोग कंप्लीट करके आया है, उसको इवेल्युएट करना, दैट इज कॉल्ड परफॉर्मेंस मेजरमेंट। उसके बाद टेकिंग करेक्टिव एक्शंस टू एंश्योर ऑब्जेक्टिव्स आर मेट, जहां पर लग रहा है कि यहां काम थोड़ा सा ढीला पड़ गया है, काम यहां पर एम्प्लॉय सही नहीं कर रहा है, तब आप वहां पर एक्शंस लीजिए, कलेक्टिव एक्शंस लीजिए ताकि वो काम आगे बढ़ जाए। तो ये चार इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो कि सर एक जॉब सर रोल के लिए। थर्ड और हेलो सर। व्हाट इज योर नेम? अंजू प्रधान सर। तो यहाँ सनराइज लिख के क्यों आया है? वो सर थोड़ा चेंज हो गया ना, ईमेल आईडी, इसलिए। तो मैंने अभी तुमको सनराइज सॉरी अंजू, मैं अभी तुमको सनराइज बोल के बुलाने वाला था। आई थॉट हु इज दिस सनराइज, मैं अभी बोलता यस सनराइज। नो सर। ओके सर चलो बोलो। थर्ड और फोर्थ समझ में नहीं आया, थोड़ा डिटेल में बताइए ना। तू सुन रही थी, मुझे लग रहा हाँ। था तू सो गई थी। आई थॉट नहीं यू हम हैव। नहीं नहीं सुन रहे थे। वेरी गुड, चलो अच्छा लगा। I thought only Abhijit is listening to me, and apart from that, you are only in my class, but you are not listening. But thanks. Okay, third or fourth, directing and leading. Directing and leading. चलो, directing and leading का मतलब क्या है? आपके अंडर में जितने भी एम्प्लॉइज है, सपोज अंजू तुमको एक टीम बना के दिया गया है और आपको उस टीम का लीडर बना के दिया है। हाँ में हाँ मिलाना। यस सर। हाँ यस सर क्या नो सर बोलना अगर समझ में नहीं आया तो। यस सर, सपोज ओके। अंजू हो हाँ वहां पर सर। तुमको तुम्हारा मैनेजर ने एक टीम बना के दे दिया, अंजू आज से उस टीम का तू मैनेजर है। पहली ठीक। बात, अब तेरा पहला काम होगा कि जो जो काम तुमको दिया गया है अकॉर्डिंग टू योर रिस्पॉन्सिबिलिटीज और अकॉर्डिंग टू द क्रेडिट ऑफ द एम्प्लॉइज आप उसको डिवाइड कर दीजिए। तुमको ये काम अच्छा आता है जाओ, तुमको सब्जी लाने अच्छा, मार्केट जाने अच्छा लगता है तुम जाओ, तुमको सब्जी बेचना अच्छा लगता है तुम ये काम करो, तुमको लिस्ट बनाना अच्छा लगता है तुम ये काम करो, तुमको प्राइस बोलने में अच्छा लगता है तुम ये काम करो। मैं एग्जाम्पल दे रहा हूं। इस तरह से तुमने अपने टीम में जितने भी एम्प्लॉइज तुम्हारे अंडर में है तुमने उसे काम डिवाइड करके दे दिया है, ठीक है। और उसके बाद तुमने सबको मोटिवेट किया कि भाई देख आज कल लास्ट डेट है, तुमको सेल्स अच्छा दिखाना है, तो मोटिवेट कर रहा है अपनी बातों से, अच्छा दिखाना है। अगर तू अपना मोटिवेशन काम में अच्छे से दे पाओगे तो अच्छे से काम कर पाओगे तो तुम्हारे लिए अप्रेजल 100% श्योर, ठीक है, तुमको पैसा बढ़ा के मिलेगा। अच्छे से काम करो, मोटिवेट कर रहे हो, ये भी होता है मैनेजर्स का एक काम। दूसरा है कम्युनिकेशन, कम्युनिकेटिंग इफेक्टिवली। जो भी आप कम्युनिकेट कर रहे हो मतलब बातचीत कर रहे हो अपने एम्प्लॉइज से, वो इफेक्टिव मतलब फ्रूटफुल होना चाहिए। ऐसा नहीं कि एक जन समझे दूसरा ना समझ में आए, सर क्या बोले हमको कुछ समझ में नहीं आया, क्या काम दिया हमको पता ही नहीं चल रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा, ऐसा नहीं होना चाहिए। इफेक्टिव कम्युनिकेशन होना चाहिए, मतलब जो भी आप बोल रहे हो अपने एम्प्लॉइज के साथ बातचीत कर रहे हो वो इफेक्टिव होना चाहिए, फ्रूटफुल, सबको समझ में आना चाहिए। तीसरा है रिजॉल्विंग कन्फ्लिक्ट एंड इंस्पायरिंग टीम वर्क। हो सकता है कभी कभी सुने होंगे तूने सुना होगा एम्प्लॉयज के बीच में अपने आप झगड़ा हो जाता है, अरे ये काम नहीं कर रहा, वो काम नहीं कर रहा, भाग हम नहीं करेंगे, भाग फेंक के चल जाता है। तब तुमको बीच में आना पड़ेगा बिकॉज यू आर द मैनेजर। अब आके बोलो दोनों के पक्ष में सुनो, तुमको क्या प्रॉब्लम है, तुमको क्या प्रॉब्लम है बताओ,
उसने कहा सर मैडम मैं कल 4 बजे से काम नहीं कर पाऊंगा। क्यों 4 बजे से तू क्यों नहीं काम कर पाएगा, क्या प्रॉब्लम है तेरे लिए? मेरे ये प्रॉब्लम, ठीक है कल सुबह तू जल्दी आ जाना, 1 घंटा पहले आ जाना, तो 1 घंटा बाद में तू 1 घंटा पहले तू निकल जाएगा। तेरा क्या प्रॉब्लम है? मैं 4 बजे के बाद ही काम करूंगा, कोई बात नहीं, तू कल 1 घंटा देरी से आना। मतलब किसी ना किसी तरह से प्रॉब्लम को सॉल्व करना, ना कि वहां पर होल्ड कर देना। ये होता है ओके। एक और रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ अ जॉब। लास्ट होता है इंस्पायरिंग टीम वर्क। हमेशा अपना टीम वर्क को इंस्पायर करना। जैसे मैंने अभी एग्जाम्पल अभिजीत को दे रहा था, सपोज फॉर एग्जाम्पल अभिजीत मेरी टीम में है, मैं अभिजीत को बार बार मोटिवेट कर रहा, अभिजीत एमबीए पढ़, एमबीए अगर तू पढ़ाई कर लेगा तो तू तो अभी वर्किंग प्रोफेशनल में है, तेरे लिए और आगे रास्ता बहुत ओपन हो जाएगा, तेरे लिए रास्ता और आगे खुल जाएगा। अंजू तू एमबीए पढ़, तेरे लिए रास्ता और आगे खुल जाएगा, लॉट ऑफ कंपनीज विल कम, तू एचआर पर्सनल बन सकती है, तू एचआर एग्जीक्यूटिव बन सकती है, तू एचआर एडमिनिस्ट्रेटिव बन सकती है। तो मैं तुमको मोटिवेट कर रहा हूं, उसी तरह से तू भी अपने एम्प्लॉयज को मोटिवेट करो कि अरे यार अच्छे से काम कर, ज्यादा से ज्यादा टाइम में काम कर, टाइम में कंप्लीट कर, तेरा अप्रेजल पक्का, पैसा बढ़ा के मिलेगा, इस मंथ तेरा सैलरी इंक्रीमेंट हो जाएगा, और अच्छे से काम करेगा, कंपनी का नाम आएगा, कंपनी का प्रॉफिट रेवेन्यू जनरेट होगा, तो कंपनी का प्रॉफिट रेवेन्यू जनरेट होगा मतलब क्या है, तेरा भी सैलरी बढ़ जाएगा। इस हम्म। तरह से मैनेजर का काम होता है अपना टीम को मनोबल को बढ़ाना, उसका विश्वास को बढ़ाना और काम हासिल करना। काम हासिल जब वो लोग अच्छे से काम करेगा तो रेवेन्यू जनरेट होगा, रेवेन्यू जनरेट होगा तो प्रॉफिट किसका होगा, कंपनीज को प्रॉफिट जाएगा, तो कंपनीज क्या करेगा, तेरा भी अप्रेजल करेगा, तेरा भी एम्प्लॉइज बढ़ा देगा, तेरा भी पैसा बढ़ा देगा, और तू साथ साथ एम्प्लॉइज जो तेरे अंडर में काम कर रहा था उसका भी तो पैसा बढ़ा देगा। दिस इज द वर्क ऑफ अ जॉब रोल। चौथा, कंट्रोलिंग एंड इवेल्युएटिंग। तीसरा वाला समझ में आया कि नहीं, पहले बता। यस सर, समझ में आ गया। एक कोई 1% डाउट है कि नहीं है? नो सर। पक्का? पक्का। ठीक है। नो सर, कंट्रोल, क्या क्लियर नो है। सर? अच्छा ओके, आई थॉट कि फिर डाउट है। हु क्लियर है। इज हु इज दिस सारंग? सारंग यू आर न्यू? ये कौन है सारंग? ये सर, सॉरी सर, मैं आप भी सुन नहीं ज्वाइन? पा रहा हूँ सर। अच्छा अच्छा, तो जब अब तक जो मैंने पढ़ाया समझ में आया? सो फार दैट आई हैव कंप्लीटेड। यस सर। 1% भी डाउट नहीं है ना? देख एमबीए में डाउट नहीं होना चाहिए। हेलो। हाँ, एमबीए में 1% भी डाउट नहीं होना चाहिए। हेलो, एम आई ऑडिएबल सारंग? हाँ सर, हमारे पास थोड़ी नेटवर्क इशू है सर। मैं बोल रहा हूं कि एमबीए में जो भी पढ़ रहे हो अभी, 1% भी डाउट रहना नहीं चाहिए। तो अब तक जो मैंने पढ़ा है डाउट क्लियर है, यही पूछ रहा था। फिर लाइन कट गया, नेटवर्क इशू। ठीक है अंजू, लास्ट पल अपना। यस सर। कंट्रोलिंग एंड हेलो। इवेल्युएटिंग। हाँ बोलो सारंग, हेलो। सुनाई दे रहा? सारंग थोड़ा सा बाहर जा, मुझे लगता है तू जहां पर बैठा है ना रूम के अंदर, वहां नेटवर्क नहीं मिल रहा है। कल अभिजीत का ऐसा हुआ था पिछले क्लास, थोड़ा सा बाहर निकल के देख। अ, अच्छा ठीक है चलो। कंट्रोलिंग एंड इवेल्युएटिंग। कंट्रोलिंग का मतलब क्या है, यू नीड टू कंट्रोल योर एम्प्लॉयज। एंड इवेल्युएटिंग मतलब क्या है, अपना जो एम्प्लॉयज तुम्हारे अंडर है उसका काम का मेजरमेंट करना। कौन सबसे अच्छा काम कर रहा है, उसको ज्यादा से ज्यादा काम दो, और कौन थोड़ा सा फाकी मार रहा है या कौन थोड़ा सा काम कम कर रहा है उसको थोड़ा सा कम ये दो। कैसे देखो, अब मैनेजर कैसे करता है, देखो इस चीज को, मॉनिटरिंग द प्रोग्रेस each and every day. The responsibility of a manager is to look after their employees, how much work and efficiently they have completed. अब इंग्लिश में इतना बताऊंगा तो तुमको समझ में नहीं आएगा, इसलिए हिंदी में बोल रहा हूं। सपोज अंजू तुमको टीम क्रिएट करके दिया है, तुम्हारे अंडर इतना सारा एम्प्लॉइज काम कर रहा है, अब तुम्हारा काम है चुपचाप बैठे रहना नहीं, जाके यस सर। देखना कि कितना दूर तक वो लोग काम किया है, अच्छे से काम किया है कि नहीं, जो प्रोडक्ट लोग काम, जो प्रोडक्ट्स लोग तैयार कर रहा है वो प्रोडक्ट अच्छे से पैकिंग, अच्छे से उसका टैगिंग ये सब हुआ है कि नहीं। उसके बाद तेरा क्या काम है, मेजरिंग द परफॉर्मेंस, कौन एम्प्लॉय सबसे अच्छा डेडिकेटेड वे में काम कर रहा है। ठीक है, ये तेरा बीइंग अ मैनेजर इट इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। तीसरा क्या है, एंड टेकिंग करेक्टिव एक्शंस। से फॉर एग्जांपल कोई एम्प्लॉइज जो है अच्छे से उसको काम नहीं आ रहा है, वो स्किल्ड नहीं हो पा रहा है, वो बार बार मतलब जो काम कर रहा है उसमें कुछ ना कुछ परसेंटेज गलत हो रहा है। अब आप
उसको करेक्ट कर दीजिए, उसको बार बार सिखाइए, बोलिए, हेल्प कीजिए। अगर नहीं हो पा रहा है, अगर कुछ काम में ढीला कर रहा है, काम ठीक से नहीं कर रहा है, मतलब लेम एक्सक्यूजेस दे रहा है, तो आप उसके अगेंस्ट में एक्शंस लीजिए। ठीक है, ये भी एक मैनेजर का रिस्पॉन्सिबिलिटीज होता है। लास्ट क्या है, टू इंश्योर ऑब्जेक्टिव्स एंड द नेट। इंश्योर ऑब्जेक्टिव मतलब क्या है, आपने उसको गोल सेट करके दिए हो कि भाई मुझे 1 हफ्ते के अंदर ये प्रोडक्ट रेडी चाहिए। आप अंजू, तुमने अपना एम्प्लॉयज को बताया, अब तुमको देखना है कि वो डेडलाइंस में मुझे वो प्रोडक्ट तैयार करके दिया है कि नहीं। ये है रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ अ मैनेजर और जॉब रोल ऑफ अ मैनेजर। Number one ओके is सर। planning and goal setting. Number two, organizing and staffing. Number three is directing and leading. And last but not the least is controlling and evaluating. ये 4 इंपॉर्टेंट जॉब रोल है मैनेजर्स का। बताओ समझ में आया ना, अभी भी हाँ डाउट सर। है? नो नो सर। पक्का? पक्का। चलो अभिजीत, इज इट क्लियर टू यू? यस सर। सारंग का तो बार बार लाइन डिस्टर्ब हो रहा है। सारंग, इज इट क्लियर टू यू? यस मुझे तो सर, सुना ही नहीं। हमारे पास थोड़ी नेटवर्क इशू रहती है सर। अच्छा, हेलो, तो आवाज जा हाँ सारंग, आवाज तुम्हारा आ रहा है सारंग, लेकिन तुम मेरे आवाज सुन नहीं पा रहे हो। अब क्या मैं बोलूं? वाईफाई से कनेक्टेड हो क्या? आर यू कनेक्टिंग फ्रॉम वाईफाई? सुना ही नहीं दे रहा। ठीक है, कोई बात नहीं, आज का क्लास यहीं रहने देते हैं। थैंक यू। थैंक यू सर। थैंक यू सर।